you know, the main login page, your teacher will be sharing the URL with you. So once you click on the URL, you will come onto the main login page. So I've taken one of your ID, Aditya. I've taken your ID. You need to enter your ID like this here and enter the password here, and you need to click on login. The minute you click on login, this is how the portal will look like. The first thing, before you start your day, the first thing you need to do is check all the important notices that your teacher has for you. So you have to click on this view all, and you will see all the important notices are mentioned for you. Below you will see that your all the subjects that you have, okay, are mentioned, like physics, maths, chemistry, biology, and English. Now, here you will see that here it is mentioned no questions practiced. The reason it is mentioned as no question practiced is because you all have not used the portal yet. Okay. So as and when you all start practicing, you'll start taking practice sessions for yourself, and you'll start taking a lot of practices for yourself. You'll start attempting a lot of questions. What this will do is this will give you a self analysis. Okay, आपने physics में suppose you have practice say about 25 questions. So what 25 questions, the number of questions will be mentioned there, and यहाँ physics के बाजू में the accuracy will be mentioned. So you will have an analysis and a data for all the chapters, like in all the chapters, how well have you performed or how well are you performing? That will be visible. Am I clear so far, students? Any doubt? No, miss. No, miss. In case if you all have any doubt, students, please unmute yourself, tell me your name and ask your doubt. Okay? Please don't feel shy. शर्माने वाली बात नहीं है. अगर आपको doubt है तो आप please मुझे पूछ लीजिएगा. ठीक है? Yes, miss. Okay, perfect. Then next we'll move. Here you will see the question attempted in here is mentioned. Now, this is basically your my progress graph. Okay, this is your progress graph. So when you keep your cursor here like this on this what you see is W1, W2, W3, W4 is nothing but week 1, week 2, week 3, week 4. So you are getting an analysis for weekly basis also. Okay, so if now that I've kept my cursor on week 1, in orange that you see, the question attempted in week 1, whatever you see in orange is how much of the questions you have attempted. Okay, and what you see in gray or in white is what an average top student has attempted. So what this will do, again, this will give you an motivation and a push to, solve more and more questions and practice more and more questions. So like this, you can see week 1, week 2, week 3, week 4. Okay. Am I clear so far in the homepage, students? Anyone has any doubt? No, miss. Repeat it again. Yes, miss. Okay, perfect. Next, we'll move on to the Learn tab. Now, what we do in the Learn tab basically is here you have three things: concept, videos, and study material. So since you're all in 11th and 12th right now, maybe the videos taught you a particular topic, you can always come back here and you can go through the concept, you can go through the study material, you can study everything properly, because when you have learned it freshly and when you come here and you go through the concepts again and again, it sits in your head perfectly. So what you need to do is you need to first click on concept. Once you've clicked on concept, you need to click on the particular class you are in, whether you're in class 11th or class 12th. I will go ahead and click class 11th. Once that is done, what you need to do is here you select the particular subject that you want to, study the concepts for.
The screen is not visible. Miss screen is not visible. Students, am I audible? Yes, miss. Yes, miss. Sorry, there was a power cut at my place and that's why the Wi-Fi went off. I'll reshare my screen again. Is my screen visible, students? Yes, miss. Thank you Yes, for your patience. Okay, so the first thing that you will need to do is click on concept. You click on the particular class that you are in, whether you're in class 11th or class 12th. So you click on class 11th. You choose the particular subject that you want to learn about. So in case you go ahead with math, the 3 lines that you see here you will see all the chapters are mentioned. Okay, so whichever chapter you want to learn, you click on that particular chapter. Suppose it's angle and measurements only. Here you will see the concepts are mentioned. So you click on this. This is how the concepts will be visible to you. So if you click on the green button here you will move on to the next concept. So whichever chapter or whichever subject you want to read the concept for, you can select that particular chapter and that particular subject and read the concept for. Next, we will move on to study material. Similar way, again, you will click onto the particular class. Here you will click onto the topic. Here you will see there are a few important questions. There will be few NCERT solutions as well. Okay, so you click on preview. The minute you click on preview, your notes will be visible to you like this. Is it visible, students? Yes, Yes, miss. miss. Yes, miss. Notes will be visible. Now, it is easily downloadable and accessible in your phone, in your laptop, desktop, your tablet. So you can easily download it also in case if you want to learn it offline. Okay, तो आप सारे notes चाहिए तो download करके रख सकते हो and you can go through it whenever you have, whenever you sit for studies. Am I clear with the Learn tab, students? Any doubt so far in the Learn tab, how you're supposed to read the concepts? No, miss, miss. वीडियो के बारे में बताओ ना. वीडियोस Uh, ये Miss, 11th ये- और 12th, आप 11th और 12th के हो तो उसमें वीडियोस अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है. वीडियोस ऐड ऑन होंगे थोड़े दिनों में. miss, hello. हेलो. Yes, Miss, yes, Chan. miss, this is a question paper, na? This is not question paper, this is your notes. Got it? ये आपको Yes. notes दिखेंगे यहाँ पे study material में. Next, we'll move on to practice tab. Now, students, this is one of the most important tab. Okay, this is an AI based platform, मतलब artificial intelligence based platform. ठीक है? So the more and more practice session you take for yourself, the more and more it will help you to grow. Your understanding will become, your concepts will be clear. आप जितना practice session लोगे खुद के लिए, आपके लिए उतना beneficial होने वाला है, because on the day of your exam, you will not, have that fear कि हाँ मुझे ये नहीं आता है या मुझे वो नहीं आता है, or you will not even have that, anxiety in you whether you will be able to solve it or not, because you've already taken a lot of practice session for yourself. So that is why I emphasize always on taking practice session. Okay, so how you're supposed to take it now in practice type, we have a few things like we have session, we have homework.
we have reports, we have marked for clarification and evaluation and feedback. I will explain it to you everything step by step in details. The first thing now we will see is practice session. So as I told you, this is an AI based platform. It will help in mapping your brains. And initially you need to solve quite a few questions. So later on, what this will do is this will give you questions according to your IQ level. Okay, so that is why it is very important for you to take the practice session for yourself. So again, what you will do is you will select your particular class, like you will click on class 11th. You will click on the particular subject, whichever subject you want to take a practice session on, assuming chemistry. Here all the chapters are mentioned as well. So what you need to do is once you click on the class and you click on the subject, you click on plus new session here. The minute you've clicked on plus new session, here you will see all the chapters are mentioned for you. So you can take maximum 3 chapters practice session, or you can go ahead with 1 or 2 chapters. It's up to you. So I'll go ahead with 1 chapter only right now. Here you can choose your question type as objective. Here you can choose the difficulty level of questions which you want to attempt, whether you want to attempt level 1 or level 2, it's up to you. I will go ahead with level 1. Here you choose your question specification. You can go ahead with regular and you click on start. The minute you click on start, students, this is how your questions will appear on the screen. Okay, so what you need to do, see, we have sufficient amount of questions for you to practice. So make sure that you take a lot of practice session for yourself. Now you've read this question. You cannot just randomly answer it. Okay, आपको अच्छे से ये चीज पढ़नी है पहले, only then you have to come and answer it. Now assuming that option B is the correct answer, I will click on submit. But when your answer is wrong for the first time, okay, when your answer is wrong for the first time, what this will do is, like suppose if you are taking a practice session in front of your teacher. Yeah. So in case if you're taking a practice session in front of your teachers, okay, what you will do is जब भी आप कुछ practice कर रहे हो और किधर आप ऐसे difficulty level face करते हो, आपके teachers हमेशा आपको थोड़ा help करेंगे, because ये test नहीं है, ये practice है. ठीक है, तो वैसे ही आप यहाँ पर ये पोर्टल आपको हेल्प करेगा टू व्यू द कंसेप्ट. तो आप कंसेप्ट रीड कर सकते हो. अब आपको पता चला कि आप कहाँ गलत हो गए. सो यू विल मूव बैक टू द क्वेश्चन. You will click on the correct answer which you feel is right and you'll click on submit. But जब भी आपका आंसर सेकंड टाइम भी गलत होता है, along with the concept आपको एक full solution भी मिलता है यहाँ पे. Okay, so now you know where you went wrong. We'll move back to the questions. We'll move to the next question. Now that we've moved to the next question, ये question आपने पढ़ लिया, फिर से आपने correct option choose किया, submit कर दिया. When your answer is right, आपको ये भी दिखाई देगा कि 55% of students have got this question correct. And what is the average time taken by the other students to solve this particular question? Of course. मैम wait. Yes, yes. मैम मेरे नाम का कोई तो मैसेज कर रहा है यहाँ पे. वो मैसेज क्या है? करण वो बाद में बात करेंगे, अभी आप लोग इस पे ध्यान दो. Karan, whatever you have messaged is pretty inappropriate. Whoever you are, मैम प्लीज देखिए बच्चे ये सब मैसेज कर रहे हैं. हाँ मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, हम लोग देखते हैं वो बाद में. जी, थैंक यू मैम. We'll move on to the next question. Now this is the third question that you have come across. अगर अभी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीजंस, व्हाट यू नीड टू डू इज, ये जो एक्शंस है यहाँ पर आपको मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन करके करना है. जैसे ही आप मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन करते हो, व्हाट दिस विल डू इज, ये इमीडिएटली आपके टीचर्स को नोटिफाई करते हैं कि दैट this particular child, like Aditya, has a doubt in this particular question. Okay, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में आप डिफिकल्टी फेस करते हो, always click here on actions, click for mark for clarification or mark for revision. Okay, in case if you find an error in any of the question, you can also report an error here. Okay,
Now, in case if you want to take a short break, अगर आप कोई short break लेनी है and you want to come back and solve the question again, so you can take a short break, pause it for a while, थोड़ा chill कर लो, उसके बाद वापस आ जाओ and continue solving. Okay. And once you have practiced satisfied amount of questions, आप end session कर सकते हो. The minute you click on end session, this is how your आपकी immediate report आ जाती है यहाँ पर. Okay, so here you will see how much of the questions are correct, how much are incorrect, how much of the questions you have skipped. ये सब कुछ आपको दिख जाता है. ठीक है. What total accuracy आपकी इस जो particular chapter की है वो कितनी है, you can see that as well. What is the average time that you have taken to solve per question? Even that is mentioned. Onto your right hand side, you will see overall in chemistry, how well are you performing? See how much. Yes. Yes, child, do you have any doubt? Am I audible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Somebody had any doubt? No. No, ma'am. Okay, perfect. Onto your right hand side, you will see in overall chemistry, how well are you performing? So how much are the total questions you have practiced? What is the attempt percentage? What is the average time that you have taken? And what is the accuracy? Even that is mentioned here. Moving below, you will see in session analytics, in case if you want to view the questions that you just took a practice session on, so you can click on total number of questions like this. The minute you've clicked on total number of questions like this, here below, you will see the questions are also visible. So you just have to click on view. So okay, this was my first question, this was the concept, and this was the full solution. Now for the ones that you have marked for doubt or you have skipped, वहां पर आप वो भी questions check कर सकते हो, which are correct, you can check that also, which are incorrect, you can check that also. Okay, if you want, you can take a printout of it, or you can save it in a PDF format as well. Am I clear, students, how you're supposed to take a practice session for yourself? How are you supposed to? Yes, miss. Good? Okay, perfect. We'll move on to the homework Ma'am. part next. मैम Yes, child. मैम मतलब अगर ये वन क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो फिर उसके बाद हम लोग हाँ. उसको करेक्ट कर सकते हैं, वापस सॉल्व कर. देखो आप करेक्ट कैसे, आप कंसेप्ट देख सकते हो और आप करेक्ट आंसर चूज कर सकते हो. मैम हम लोग क्वेश्चन एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं ना, मतलब एक हाँ, आप क्वेश्चन एक ही बार. यस यस यस, एक ही बार. मतलब देखो, अगर आपका फर्स्ट टाइम रॉन्ग होता है ना, अगर प्रैक्टिस टैब में फर्स्ट टाइम अगर रॉन्ग होता है, तो फिर आपको कंसेप्ट करके आपको एक और चांस मिलता है टू आंसर द करेक्ट क्वेश्चन. ठीक है. ओके मिस. मैम ये सेल्फ, क्या कह रहे हो आप? मैम ये सेल्फ प्रैक्टिस है ना बस, ये सेल्फ प्रैक्टिस है. यस यस, ये सेल्फ प्रैक्टिस है. बट जो प्रैक्टिस सेशन पर करते हो, आपके टीचर्स को वो रिपोर्ट चले जाता है, पता है. ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि वो कैसे दिखेगा, होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ. अब स्टूडेंट, एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? Yes. No, miss. No, miss. Okay. Miss, I have a doubt. Yes yes, child, ask me. मिस मतलब हमने एक क्वेश्चन में डाउट मार्क फॉर क्लेरिफिकेशन किया, तो उसका डाउट फिर टीचर मतलब टीचर को नोटिफिकेशन जाएगा, फिर वो क्लियर करेंगे ना. यस यस बाद यस, में? टीचर्स आपके क्लियर करेंगे. मतलब जैसे केमिस्ट्री का डाउट है तो वो हाँ. नोटिफिकेशन केमिस्ट्री के सर को जाएगा, ऐसा है क्या? यस 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 यस. तो फिर क्लास में जाके हमको उन्हें बताना पड़ेगा, ऐसा है? देखो आपके टीचर, वो आपके टीचर पर है कि वो कैसे आपका डाउट क्लियर करते हैं, वेदर वो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन लेके करते हैं या आपको कोई जूम मीटिंग के लिंक देके करेंगे, वो आपके टीचर पर है. बट जो भी आपके डाउट है वो आपके टीचर तक चले जाते हैं. ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट है होमवर्क टैब. अब आपके टीचर्स आपके लिए कुछ असाइनमेंट क्रिएट करेंगे और दे विल क्रिएट अ होमवर्क फॉर यू, एंड व्हाटएवर असाइनमेंट और होमवर्क दे हैव allotted for you, that will be visible to you here in the homework section.
ओके, सो ऑल यू नीड टू डू इज, यहाँ पर एक एक्शन का टैब आएगा, उसको आपको बस व्यू पर क्लिक करना है एंड यू हैव टू मूव ऑन एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट योर टीचर हैज allotted for you. Next is reports. Now whenever you want to check the practice report for yourself, जो भी practice sessions आप खुद के लिए लेते हो उसकी reports अगर आपको check करनी है तो वो यहाँ पर दिख जाएगी reports पर. आपको बस यहाँ व्यू पर क्लिक करना है और आपको इन डिटेल्ड रिपोर्ट दिख जाती है ऐसे कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, हाउ मच ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट, व्हाट इज द अटेम्प्ट परसेंटेज, व्हाट इज द एवरेज टाइम दैट यू हैव टेकन टू सॉल्व पर क्वेश्चन, इन ओवरऑल केमिस्ट्री हाउ वेल आर यू परफॉर्मिंग, you know, here it will also show you, you just need to click on view and आपका question, concept, full solution सब कुछ दिख जाता है. So basically you will see an in detailed report here. Next we'll click on mark for clarification. Now as I told you students के we tend to forget कि कौन से क्वेश्चन में हमको डाउट था या क्या होता है, हमको नहीं याद रहता है, ह्यूमन ब्रेन है, एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए. So what this will do is जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन करते हो वो सारे आपके इस मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन में जॉट डाउन होते जाते हैं. तो what you can do is you can come here, you can view the question. ये आपका क्वेश्चन था, आप कंसेप्ट और सोल्यूशन भी व्यू कर सकते हो. एक बार आपके टीचर ने, ठीक है, आपके टीचर ने सारे डाउट क्लियर कर दिए आपके, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है, Yes. student, any doubt? No, ma'am. Next we'll move on to evaluation and feedback. Now as I told you, whatever you do on this portal, जो कुछ भी आप यहाँ पर करते हो आपके टीचर्स को दिखाई देता है. So if you are taking a practice session for yourself, your teacher will get to know that you are taking a practice session for yourself. What is the reports, how well are you performing, सब कुछ आपके टीचर्स को दिख जाता है. सिमिलर वे में आपके टीचर्स जब वो रिपोर्ट्स देखते हैं आपको आपके टीचर्स एक फीडबैक देंगे. ओके, सो व्हेनेवर योर टीचर हैज गिवन एनी फीडबैक टू यू, दैट फीडबैक विल बी मेंशन्ड हियर इन द फीडबैक सेक्शन. ओके, Yes. yes. Here with the practice tab, students, anything you want me to explain it to you again? No, मिस Yes. मिस मतलब होमवर्क में वहाँ क्लास में से जो हमें होमवर्क मिलेगा वो आएगा ना उसमें? जो आपके टीचर्स आपके लिए होमवर्क देंगे ना वो आपको यहाँ पर दिखेगा. टीचर्स आपको बराबर देंगे, आपको एक्शन पर जस्ट एक्शन पर क्लिक करना है, वहां पर स्टार्ट नाउ का ऑप्शन होगा आपके पास और आप कंटिन्यू कर सकते हैं होमवर्क के साथ. मिस मैम मतलब उधर ही सॉल्व करना है क्या होमवर्क से, मतलब टैब में और सम क्या कह रहे कुछ हैं? रहेगा होमवर्क वर्क में जो दिया होगा उधर ही सॉल्व करना है, ऑनलाइन में क्या ऑफलाइन में पीडीएफ यहाँ पर ऑनलाइन में आपको करना है. मैम, हेलो मैम. बोलिए बोलिए. मैम लेकिन वो होमवर्क तो एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा. जी, एमसीक्यू भी हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो आपके टीचर्स आपको अकॉर्डिंगली देंगे. ठीक, मतलब इसमें एमसीक्यू नहीं और सब्जेक्टिव भी रहेगा क्या? यहाँ पर सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों के ऑप्शंस है आपके पास. तो टीचर्स आपको वो होमवर्क बराबर दे देंगे. यू डोंट वरी अबाउट इट. ओके मैम यस. मैम जो क्लास से होमवर्क आएगा उसका नोटिफिकेशन आएगा कि अंदर जाके चेक करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर आके चेक करना पड़ेगा. अगर आपके टीचर्स अगर आपको नोटिस बोर्ड पे डाल देते हैं, लाइक एक नोटिस दे देंगे कि यू नो सो एंड सो होमवर्क इज अलॉटेड टू सो एंड सो क्लास, वो आपको फिर नोटिस बोर्ड में दिख जाएगा. फिर मिस बता देगी ना पहले, मतलब उधर होमवर्क दिया है तब. और आपको देखो एवरी डे तो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप प्रैक्टिस टैब पर आओगे, साथ ही साथ आप होमवर्क भी चेक कर लेना. ओके Okay. Any other doubt, students, in the practice tab? No, miss. We'll move on to the test tab. Okay. Now, students, आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं. ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्ट टेस्ट दिख रहा है ना, ये नीट और जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन के लिए एक रियल टाइम पर कैसे दिखता है उसका है. तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपको ये जो सिलेक्ट है ना, यहाँ पर टिप्स का ऑप्शन देना है और ऐड टेस्ट करना है. जैसे ये पैकेज एडेड सक्सेसफुली आता है, आपको एवरी टाइम यहाँ पर क्लिक हियर टू रिफ्रेश स्टार्ट टेस्ट करना है. जैसे ही आपने ये कर लिया, आपको स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करना है. आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा.
यहाँ पर टेक टेस्ट, माय एक्शन पर जाके आपको टेक टेस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखेगा कि JEE मेन एडवांस्ड सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको जो भी लेना है, सपोज आपको एक JEE की शॉर्ट टेस्ट लेनी, तो आप JEE का टेक शॉर्ट टेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप स्टार्ट फ्री टेस्ट पर क्लिक कर दो। आपको जैसे JEE के एग्जाम के दिन जब भी सच में आप एग्जाम दोगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पर आती है वो आपको सिमिलर वे यहाँ पर भी दिखेगी। तो आपको पूरे जनरल इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं और यहाँ पर आपको ब्लू टिक मार्क करना है दैट आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन एंड आई एम रेडी टू बिगिन करना है। आपको इस तरीके से क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा। आपका टाइमर बिगिन हो गया है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे। अब आपने यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया, आप करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर लो, आप सेव एंड नेक्स्ट कर लो। अब आप देखोगे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया वेदर यू हैव अटेम्प्टेड द राइट आंसर और नो, जो भी कुछ भी नहीं आया। आप प्रॉपर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ये इसके लिए। तो अभी मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सपोज मैंने कॉलम बी सिलेक्ट कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट करना है। आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के सॉल्व करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। मिस, हेलो मिस। यस मिस, ये मतलब टेस्ट सीरीज में सिर्फ जेई और नीट का ही रहेगा क्या? क्या 11 का भी सब मतलब रहेगा? 11-12 का भी है। मैं बताती हूँ आपको। मैम इसमें नेगेटिव आप मार्किंग में से होगा? कोई बच्चे 11-12 MSc कुछ ये कर रहे हैं क्या, JEE या नीट के प्रिपरेशंस कर रहे हैं? Yes, miss. Yes, Yes. So this is for you all only students. Just go through it however I am doing it. क्योंकि आपको एग्जाम के दिन भी ऐसे ही आने वाला है। मैम इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? क्या कह रहे हो? आंसर रॉन्ग आने Negative पर marking. मार्क कट होगा? आंसर रीमार्क कैसे होगा? नहीं मिस, नेगेटिव मार्किंग पूछ रहे हो? बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। पहले मैं सॉल्व तो कर लूँ, फिर मैं आपको बता दूं कि कैसे करना है। आप ध्यान दीजिए, जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बता रही हूँ, ठीक है। ओके मिस। तो नाउ अभी आपने ये जो 5th क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, इसके पहले यहाँ पर आपको ये राइट हैंड साइड पे दिख रहा है कि जो ग्रीन में होगा वो आंसर्ड होगा, जो रेड में होगा वो नॉट आंसर्ड होगा, जो आपको ऐसे थोड़े टर्कोइज का ये वायलेट कलर में या ग्रे कलर में दिखेगा वो नॉट विजिबल है, और जो आपको प्रॉपर वायलेट में पर्पल में दिख रहा है वो मार्क फॉर रिव्यू है, ठीक है। तो अभी आप मुझे अगर ये 5th क्वेश्चन पर जाना है तो मैं 5th क्वेश्चन पर जाती हूँ। अब मुझे लगता है कि जो ये मैंने क्वेश्चन किया है ये ना मैंने सही नहीं किया है, तो आई कैन क्लियर द रिस्पॉन्स और मैं करेक्ट आंसर अटेम्प्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ऐसे बच्चों आप अगर चाहे तो आप डायरेक्टली फिजिक्स पहले कर सकते हो, या आप सीधा मैथ सेक्शन पर जाके सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। अब मैंने सब कुछ सॉल्व बराबर कर लिया तो आई विल क्लिक ऑन सबमिट। यस, आई एम डन। द मिनट आई क्लिक ऑन सबमिट मुझे मेरी रिपोर्ट यहाँ पर इमीडिएटली दिख जाती है। सो हियर यू विल सी दैट टोटल स्कोर मेरा नेगेटिव मार्किंग में चला गया है। इन फिजिक्स हाउ मच वर द क्वेश्चंस, उसमें मैंने कितने अटेम्प्ट किए। सो जब मैं फिजिक्स पर क्लिक करती हूँ ऐसे, तो यहाँ पर दिखेगा कि क्वेश्चंस थे, आंसर कितने थे, करेक्ट कितने थे, उसमें से करेक्ट विद इन टारगेट टाइम कितना था, इनकरेक्ट कितने थे, नॉट विजिटेड कितने थे, एंड व्यूड मोर देन ट्वाइस तो वो कितना था। केमिस्ट्री में क्या है कि मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, अगेन हाउ मच ऑफ देम आई हैव आंसर्ड, हाउ मच ऑफ देम आर करेक्ट, ये इन डिटेल रिपोर्ट आपको दिख जाती है। Now, if you want to check your question level analysis, so you click on this question level analysis. यहाँ पर आपको दिख जाता है आपका रिपोर्ट। तो आपको यहाँ केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स सबकी रिपोर्ट दिखती है। ये जो आपको ग्रीन फ्लैग दिख रहे हैं, अब जैसे मैं थोड़ा नीचे जाती हूँ ना, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल। आई बिलीव आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी बच्चों। यस मिस। आप देखोगे कि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल है कि ऑल है, हाई है, मीडियम कौन से है, लो कौन से। तो आप देखोगे इमीडिएट ग्राफ में चेंज आ रहा है, करेक्ट। जब मैं ऑल कर रही हूँ तो मुझे सब कुछ दिख रहा है, जब मैं हाई कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ ये दिख रहा है, जब मैं मीडियम कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ ये दिख रहा है, और लो कर रही हूँ
तो ओनली वन क्वेश्चन दिख रहा है, तो मैं ऑल पर रखूंगी। यहाँ पर आंसर स्टेटस है, करेक्ट कितने हैं तो ग्रीन में दिखेगा, करेक्ट मोर देन टाइम कितना है तो येलो में दिखेगा, इनकरेक्ट कितने हैं वो रेड में दिखेंगे, और डिड नॉट अटेम्प्ट कितने हैं वो मुझे ग्रे में दिखेगा। तो अभी के लिए मैं ऑल कर देती हूँ। ये जो आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं ना, ये रेड ग्रीन, इस पर जब मैं क्लिक करती हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मुझे पूरा इन डिटेल रिपोर्ट दिख जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत अटेम्प्ट किया था। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देगा टाइम टेकन बाय मी, द नंबर ऑफ विजिट्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल क्या थी, वेदर इट वाज इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, हार्ड, सब दिखाई देगा। चैप्टर कौन सा है और टॉपिक कौन सा है वो भी दिखाई देता है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, और यहाँ पर उसकी आंसर भी रहेगी, अब अवेलेबल आंसर, और जो आपने सिलेक्ट करा था वो भी आपको दिख जाता है। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आप देखना है तो आप करेक्ट फ्लैग पर क्लिक कीजिए, और ऐसे आपको दिख जाएगा कि ओके ये क्वेश्चन आपने करेक्ट आंसर किया था। एम आई क्लियर? ये कैसे करना है आपको? एनी डाउट स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो। सब्जेक्ट्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स है सॉरी चाइल्ड, मिस, ओनली सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी नहीं दिया था मिस। मैंने JEE का लिया है ना बच्चे। ओके ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पे, अभी ये तो कैसे एक रियल टाइम प्रॉपर, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने सब चैप्टर्स अच्छे से कर लिए हैं, आप एकदम क्लियर हो, तो आप ये टेस्ट ले सकते हो। नाउ ऑन टू योर राइट हैंड साइड, अगर आपको एक चैप्टर असेसमेंट लेना है तो आपको यहाँ स्टार्ट चैप्टर असेसमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप यू कैन क्रिएट एन ओन टेस्ट फॉर योर सेल्फ। ओके, तो आप यहाँ पर 30 मिनट्स टेस्ट ले सकते हो, 1 आवर ले सकते हो, 2 आवर ले सकते हो, 3 आवर ले सकते हो, बट जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ता है, योर चैप्टर सिलेक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। सो एज ऑफ नाउ आई जस्ट कीप अ 30 मिनट्स टेस्ट। Here you can choose your difficulty level of question, whether you want to go for easy, medium, difficult. So I'll just go for easy questions. Here you can choose your subject. Like if you want to go for biology, you can go for biology. Here you can choose your subject. You can choose your topic. आप यहाँ अपने chapters भी choose कर सकते हो. Again, you can choose multiple chapters. It's up to you. Okay. यहाँ OK पर select करना है आपको. And you have to click on start test. The minute you click on start test, your questions will be visible. Now you will see that a timer has begun. In 30 minutes, you have to solve 20 questions. You have to read the question properly. You have to click on the correct answer. You have to click on submit and next. You have to read the correct answer, read the question properly, click on the correct answer, click on submit and next. ऐसे मैं कुछ 3-4 questions आपके लिए solve कर देती हूँ students. मैम यस मैम, अगर टाइम से ज्यादा चलेगा तो मतलब अपने आप सबमिट हो जाएगा? यस, मतलब जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे उसमें? यहाँ देखो, आपको ना ये ध्यान रखना है कि आप टाइम पर सारी चीजें ये कर रहे हो, बिकॉज अगर टाइम लिमिट ही आपका प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम कैसे दोगे। तो ये इसके लिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस सेशंस लो, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको आ जाए, फिर आप टेस्ट ले लो अपने लिए, ये चैप्टर असेसमेंट टेस्ट, तो और क्लियर हो जाए। ठीक है मैम? हेलो हम इस Yes, डेली sir. हम लोग कितने भी टेस्ट मतलब प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं ना? यस कितने भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस, टेस्ट का मार्क्स कितना होता है? क्या कह रहे हो? टेस्ट का मार्क्स कितना होता है? 20, 40? मैं रिपोर्ट्स दिखाती हूँ ना आपको कैसे आएंगे। मैम इसमें क्लियर रिस्पॉन्स नहीं कर सकते ये चैप्टर असेसमेंट में? नहीं, चैप्टर असेसमेंट में आप क्लियर रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। ठीक है? यस मिस। Yeah, Nandu, you have some question? Okay. अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपने देख लिया, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है टू सॉल्व, तो आप सेव इट फॉर लेटर कर सकते हो। ठीक है? अब ये जो राइट हैंड साइड पे आपको ब्लैक कलर का क्वेश्चन टैब दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका ना
क्वेश्चन नेविगेटर है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कितने क्वेश्चंस आपने टोटल सबमिट किए हैं, कितने आपने सेव फॉर लेटर किए हैं और कितने आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ये आपको ये नहीं दिखा रहा है कि जो ब्लू में दिख रहा है वो राइट किया है आपने, नो, ये बस दिखा रहा है कि आपने इतने क्वेश्चन सबमिट किए हैं, एक आपने सेव फॉर लेटर किया है। नाउ इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू द 15th क्वेश्चन। आप सीधा 15th क्वेश्चन पर जा सकते हो, करेक्ट आंसर चूज करके सबमिट एंड नेक्स्ट कर सकते हो। जो आपने सेव फॉर लेटर किया था 5th क्वेश्चन, आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन पर भी जा सकते हो, कैन चूज द करेक्ट आंसर एंड क्लिक ऑन सबमिट एंड नेक्स्ट। ओके, आपको पूरा 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट मैं अभी के लिए एंड कर दूंगी टेस्ट। द मिनट आई एंड माई टेस्ट, आप देखोगे कि मेरी रिपोर्ट्स इमीडिएटली यहाँ आ गई है, ठीक है। सो हियर यू विल सी द क्वेश्चंस दैट वो करेक्ट वाज 0, व्हाट इज द अटेम्प्ट परसेंटेज वो दिखाया है, एवरेज टाइम आई टुक टू सॉल्व पर क्वेश्चन मैंने कितना लिया है, एंड व्हाट इज द टोटल टाइम दैट आई हैव टेकन टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू दिस पर्टिकुलर टेस्ट, इवन दैट इज शोन। यहाँ पर आपको एक्यूरेसी दिख जाती है कि व्हाट इज योर एक्यूरेसी फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं, सो यू कैन क्लिक ऑन द क्वेश्चन नंबर, तो आपको क्वेश्चन दिख जाता है। अगर आप सोल्यूशन पर क्लिक करते हो तो आपको सोल्यूशन भी दिख जाता है कि ओके दिस वाज द सोल्यूशन। इफ योर आंसर वाज इनकरेक्ट, सो यहाँ पर नो दिख जाता है, अगर करेक्ट है तो यस दिख जाता है। इफ इट इज इनकरेक्ट, व्हिच इज द करेक्ट आंसर, वो ऑप्शन दिख जाता है। What is the time taken by you to solve per question, that is mentioned, and what is the global correct time taken by an average top student to solve this particular question, even that is mentioned. Okay, आपको पता चल गया बच्चों आपको चैप्टर असेसमेंट कैसे लेना है खुद के लिए? Yes. We'll come back to the Yes, test yes. history later on. We'll move on to institute test. Now, whenever your teacher has assigned any test for you, proper test for you, तो आपको यहाँ इंस्टीट्यूट टेस्ट में दिखेगा। आपको यहाँ पर यू नो जैसे एक्शन पे टाइम अप दिख रहा है, यहाँ एक्शन पर आपको स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आएगा। तो आपको जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड टाइम दिखाया गया है, वो स्टार्ट डेट एंड टाइम पे आपको करना है। यहाँ पर स्टार्ट का ऑप्शन आएगा, आपको स्टार्ट करके अपना टेस्ट बिगिन करना है, ठीक है। वील कम बैक नाउ, वील मूव ऑन टू टेस्ट हिस्ट्री। अब जब भी आपको ना टेस्ट हिस्ट्री देखनी है, मतलब आपने जो टेस्ट खुद के लिए लिए है उसका रिपोर्ट्स देखना है, और यह जो इंस्टीट्यूट टेस्ट ने आपके लिए जो रिपोर्ट्स है अगर आपको वो देखने हैं तो यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। सो इफ यू वांट टू सी योर own test history, so you click on common on test history, you click on view report. If you want to see institute test history, you click on institute test history, and there will be an option to click on view report. Okay, am I clear with the test path, students? Anyone has any doubt? No, miss. No ma'am. Okay, we'll move on to the live classes. Now, whenever your teacher has scheduled any live class for you, okay, तो यहाँ पर आपको ये available live classes में आ जाएगा, okay, तो आपको बस यहाँ पर बुक करके ऑटोमेटिकली वो स्केड्यूल्ड में दिखने लगेगा आपको, कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपके टीचर्स ने कौन से डे पे कौन से लाइव क्लासेस आपके लिए स्केड्यूल किए हैं। So you have to just click on book here in available classes, and here in scheduled all the classes will be there. You just have to click on join now. That's it. You don't have to go through any other link or anything like that. आपको बस यहाँ join now पर click करना है and you will move directly get into your class. Have you all understood, students? I have explained you the Yes, whole miss. portal. Yes. 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 Ma'am, are you there with me? Yes, ma'am. बोलिए ना. मैम मैंने सब कुछ बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। जब वो प्रैक्टिस करेंगे फिर उनको कोई डाउट होगा ना तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, हम एक और रिफ्रेशर सेशन रख सकते हैं बच्चों के। ओके मैम, चलेगा। स्टूडेंट्स आप लोग का सब क्लियर है? कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी भी। सब क्लियर है आप लोग को? यूजर नेम और पासवर्ड कब मिलेगा? वो सब आपको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अभी मैम ने जो भी समझाया सब क्लियर है? यस Yes, miss. यस मैम। ओके देन। ओके मैम, ठीक है। ठीक है मैम, सो वी कैन एंड इट। यस मैम। Okay, perfect, ma'am. Thank you so much, students. Thank you so much, ma'am. Thank you, miss. थैंक यू मिस। Thank you, miss.